लाइक जरूरी नहीं है कि आप वही सब चीजें खाएं जो अभी आप जो बहुत फेमस हो रखी हैं या जो भी बहुत कैलोरी डेंस्ड हो। सी हेल्दी फूड भी बहुत टेस्टी होते हैं। आपको बस ध्यान में रखना, अपने पैलेट को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिए और हेल्थ के बारे में सोचिए, क्योंकि हेल्थ ही वेल्थ है। इसका बड़ा एग्जांपल लॉकडाउन से और ये वायरस के दौरान और क्या हो सकता है। सो मतलब देखा जाए कि अभी आप देख सकते हैं सिचुएशन क्या है। सिचुएशन यही है कि हमें हेल्थ की वजह से अपना वेल्थ और अपना अपना ऑफिस सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है। तो इसी हेल्थ को बनाए रखने के लिए क्या हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते फूड पे? Why not? So that is the thing. So we can we can go for healthy options. There are many options. We'll start with अगर obesity weight gain की बात आती है तो first thing that comes in our mind is fat. Obviously अभी तो most of you will know कि fat क्या है, because there are so many Google search where everything is going on कि fat के बारे में ये होता है वो होता है. So everybody has become a genius about it. But what exactly people are not getting in point is कि not only differentiating your fat will make you healthy, but there are many other things which you have to take a note, like carbohydrate. See, if I suppose I stopped all my fat, what about my carbohydrate? What do you think carbohydrate does in our body? So for a long run, if a person is eating carbohydrate, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बो Okay, so sorry for the inconvenience. लगता है मैम की तरफ से internet is not working. So let us take few minutes. We'll soon connecting again. Thank you for your cooperation. Okay, so thanks for staying with us. We have just talked with the expert. She is again connecting. Meanwhile, I'm Narendra from HealthCrum, just looking out for your questions, seeking for your questions. Kindly share your questions related to weight, how one can manage their weight, right? So Miss Preeti उन सारे सवालों का जवाब देंगी. वो बहुत ही जल्द हमारे से वापस कनेक्ट होंगी. And you can ask people on Facebook watching us, people are also following us on WhatsApp. So एक महीने से ज़्यादा हो गया है इस वेबिनार सीरीज को आयोजित करते हुए. हेल्थक्रम की टीम लगातार आपके पास इंडिया के कोने कोने से कई सारे एक्सपर्ट्स लेकर आ रहे हैं. एंड बहुत ही अलग अलग टॉपिक्स पे हमने वेबिनार्स किए हैं. It is related to women health, it is related to hygiene, it is related to COVID-19. और भोपाल बीएमसी, भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भी यही मानना है कि आप सब जो घर पे बैठे हैं उनको इस नए जमाने के नए तरीकों से अवगत कराएं, कैसे वो अपनी नई लाइफ स्टाइल मैनेज कर सकते हैं. सो हमारे साथ जो डॉक्टर्स हैं वो आपके
प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं टेली कंसल्टेशन के द्वारा. सो you can ask your questions, and if you are not comfortable to ask your personal questions, then you can connect with our doctors via teleconsultation. हम हमारे numbers, हमारी lines हम आपके साथ share करेंगे during the session. लगता है मिस प्रीति हमसे जुड़ गई हैं. मिस प्रीति, are you there? Yeah, I'm here. Okay, yeah. Yeah, please. Yeah, sorry for that disturbance. There's a lot of network problem here. So, may I continue with what I was speaking? Yeah, please. Yeah. Okay. So, what I was trying to say that when I was talking about carbohydrate basically. So, what I was trying to say, rather than choosing just cutting your fat and thinking you will be healthy, you should see other measures also. See, fat is obviously important when I am talking about cholesterol, which mainly comes from your animal food. So there you have to cut it down. But only thinking that if I'm not eating ghee, butter, and animal food, I will be healthy, then you're not right. So basically, we have to start choosing our right carbohydrate. Right carbohydrate, I mean the complex carbohydrate, the carbohydrate which is rich in fiber. So rich in fiber carbohydrate are which one? So like we have a choice between rice, that is white rice, we have brown rice, we have black rice, we have a variety of rice, right? So what happen is your white rice is the simplified, or we say it is the one which does not contain the fiber. Whereas your brown राइस में फाइबर ज्यादा होता है. तो इसलिए अगर यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर हैज good property that it will help you eat in the food. We are seeing that nowadays there are so many diets, like if you have heard about keto diet, if you have heard about many other diet. So this thing, like keto diet, somebody have asked. So this keto diet is basically, I will call it as a fad diet. Fad is FAD, which means that is trending. Like the thing I was telling you कि खाने में तो trend चल रहा है, वैसे ही diet में भी trend चल रहा है. सिर्फ कीटो डाइट ही नहीं, मेनी अदर डाइट्स आर देयर जिसको लेके इतनी कंट्रोवर्सीज बनी हुई है कि पीपल आर फॉलोइंग इट, लूज भी हो रहा है, बहुत हेल्पफुल है. बट व्हाई नॉट डाइटिशियन स्टिल आर नॉट सजेस्टिंग? क्यों बहुत सारी जगह पे डाइटिशियन आर अवॉइडिंग दिस काइंड ऑफ डाइट? तो उसका मेन रीजन ये है कि ये सारी डाइट्स आपको लॉन्ग रन में कभी हेल्प नहीं करेंगी. तो ये डाइट क्या होती है, सम पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होगा. अगर आपने कुछ फ्यू मंथ्स फॉलो किया, अरे वाह व्हाट अ रिजल्ट, एक केजी 2 kg लूज भी हो गया, बहुत अच्छी बात है. बट व्हाट अबाउट लेटर इट विल नॉट बी हैपनिंग द सेम वे. अगर आपने नोटिस किया हो कभी कि अगर फर्स्ट मंथ में जिम गया तो जिम में इतना वेट लॉस हुआ, ओ माय गॉड इट इज वेरी गुड, अब तो जरूरत ही नहीं है, वी हैव गॉन लाइक अटेन अ स्टैंडर्ड वेट. फिर क्या हुआ? आफ्टर कमिंग बैक अगेन जिम छोड़ दिया, वेट गेन हो गया. सेम थिंग is happening with these kind of diet. as soon as आप थोड़ा भी चेंज करेंगे आपका वेट वापस आ जाएगा. सो until unless आप कोई भी चीज लाइफ लॉन्ग फॉलो नहीं कर सकते तो मत जाइए इन सब डाइट में. so this is the thing. so not only this keto diet, many diets are there. so I particularly, like personally, does not suggest all these things because we know this is very difficult. see for Indians, जब हम लोग बोलते हैं कि राइस मत खाइए तो ही इतना बड़ा हो जाता है कि हाउ कम, मैं कैसे रह सकता हूँ राइस के बिना, दैट इज माई स्टेपल डाइट. so how can I like think that a person, I feel if I ask कि सब कुछ छोड़ के सिर्फ यही चीज खाते रहिए, that person will follow. और हो गया 1 महीना, हो गया 2 महीना, हो गया, what about later? तो जो भी चीज हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, सी देयर इज अ सेइंग कि अगर हम कोई भी चीज एक लाइक पर्टिकुलर टाइमिंग पे करें या फिर हम लोग एक अमाउंट में करें तो इट इज हेल्दी, बियॉन्ड दैट इट इज नॉट हेल्दी. तो डाइट के साथ भी ऐसा ही है. डाइट तब तक हेल्दी होगा जब आप बैलेंस्ड करके खाएंगे सब कुछ, so that will be healthy for you. so there are so many things happening in the lockdown, like people are the life has become very sedentary. job bhi hai Ms. to Preeti, yeah sorry for interruption. Can we take few yeah questions, then we can proceed? yeah sure Okay, sure. thanks. सौरभ जी ने सवाल किया है, I Mm-hmm. feel very tired due to high हाँ. weight. How to Okay. manage it and feel energetic?
ओके ओके, सो द पर्सन इज टायर्ड, ऑब्वियसली देखो जब वेट गेन होगा तो द टायर्डनेस विल इंक्रीज। सी वी हैव टू चेक, ऐसे में आपको वेट रिड्यूस करना होगा, देन ओनली यू विल फील एक्टिव। See, there is in weight gain, there is one more thing which is called as BMR, which affect a person a lot. So BMR क्या है? Basal metabolic rate. So it depend करता है, हर पर्सन का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे मैं इसके इन डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे लाइक इन जनरल इस इंसान ने पूछा है कि अभी क्या करना है, कैसे करना है, बहुत लोग का यही क्वेश्चन होगा। सो वी कैन नॉट सी ईच एंड एवरी पर्सन BMR। तो मैं कहूंगी कि ऐसे में आप घर में एक्सरसाइज, नॉर्मल योगा या कुछ करें, प्लस आप एक ऐसा डाइट प्लान, अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट को पास जाके या डाइटिशियन को जाके बोल सकते हैं डाइट प्लान बनाने, या फिर खुद से जैसे मैंने बोला कुछ कार्बोहाइड्रेट में चेंजेस करके, कुछ अपने डाइट में वेजिटेबल्स और फ्रूट जिसमें बहुत हाई कंटेंट ऑफ या फाइबर होता है वो सब इंक्रीज करके, अपना वाटर इनटेक इंक्रीज करके, ये सब इंक्रीज करके, और अपना फैट इनटेक डिक्रीज करके, अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट को डिक्रीज करके अगर आप बैलेंस करेंगे तो ऑब्वियसली डेफिनेटली आप अपना वेट भी मैनेज कर सकते हैं। और ये टायर्डनेस ऑल इज लिंक्ड टू योर वेट। अभी तो टायर्डनेस ही हो रहा है, लेटर रन में बहुत सारे डिजीज विच कैन लीड बिकॉज ऑफ द ओबेसिटी। सो बेटर है कि अगर अभी से आप बी कॉन्शियस, स्टार्ट रिड्यूसिंग योर वेट और डाइट पे ध्यान दें ज्यादा से ज्यादा। So there was a question about थैंक यू मिस प्रीति फॉर द आंसर। सौरभ जी को ये जरूर हेल्प करेगा। एंड सौरभ जी आप 5 मिनट से चालू करें, ऐसा नहीं है कि हमेशा 10-15 आधा घंटा 1 घंटा लगा ही। सो एम आई राइट मिस प्रीति? yeah ओके, yes। सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गुलजार जी से। ही इज सेइंग आई एम गुलजार, PhD नैनो टेक्नोलॉजी। I want to ask a question, how is stress related to weight gain? Yeah, that's a very good question. See, stress is actually directly linked to obesity. So अगर आपने कभी ध्यान से नोटिस किया होगा, ना ही सिर्फ स्ट्रेस, कोई भी मूड स्विंग्स, कोई भी मूड चेंजेस विच लेडीज विल आसानी से कोरिलेट कर पाएंगे इस बारे में, विल लीड टू योर डाइट चेंजेस। तो स्ट्रेस में क्या होता है, इट विल डायरेक्टली योर हाइपोथैलेमस विल बी अफेक्टेड एंड योर पिट्यूटरी ग्लैंड विल बी अफेक्टेड। सो इससे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल विल टेंड टू ईट मोर एंड मोर। तो उनको ऐसा लगेगा लाइक वी से वी लाइक टू ईट शुगरी आइटम्स मोर, चॉकलेट्स खाने का मन करता है, या फिर फूड जो रिच इन कैलोरीज होता है वैसा खाने का मन करता है। तो हम कई बार ऐसी चीजें, छोटी छोटी जो चेंजेस आ रहे हैं ना, वो इग्नोर कर देते हैं, फिर हमें लगता है कि कैसे वेट गेन कैसे हो गया। तो व्हाट हैपन हियर इज कि धीरे धीरे हम लोग इतना खाने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, लाइक एवरी 5 मिनट्स हमें कुछ चाहिए। कुछ लोगों की तो ऐसी हैबिट होती है कि काम करते करते भी खा रहे हैं, मतलब कुछ भी चल रहा है तो मुंह में कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। तो ये सब कुछ तुम्हारे स्ट्रेस से रिलेटेड है, और स्ट्रेस विच विल अफेक्ट योर अगेन ओबेसिटी। इवन स्ट्रेस कैन डिक्रीज योर इंसुलिन सेंसिटिविटी, जिससे कि लॉन्गर रन में डायबिटीज भी हो सकता है। तो स्ट्रेस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर द बॉडी। That's why people who have been suffering from long stress tend to gain weight. Okay, so गुलजार जी आप स्ट्रेस थोड़ा कम कीजिए। और ऐसे भी कई केसेस हमने देखे हैं जिसमें लोग स्ट्रेस होने पे, गुस्सा होने पे ज्यादा खाने लग जाते हैं। राइट, सो ओके, एनोनिमस अटेंडी, ओके, सो इन्होंने अपना नाम शेयर नहीं किया है। ये पूछते हैं, स्टेमिना हैज बिकम जीरो, हाउ कैन आई रिटेन इट बैक? ओके, सो गुड, आई थिंक दैट इज द इफेक्ट ऑफ लॉकडाउन। ओके, अगर देखो स्टेमिना भी तुम्हारे एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, तुम्हारे फिजिकल एक्टिविटी पे। अभी स्टेमिना ऑफ ऑब्वियसली स्पोर्ट्स पर्सन विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द स्टेमिना ऑफ आवर्स, क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी इज लाइक वेरी लेस कंपेयर टू देम। सो स्टेमिना हैज रिड्यूस्ड बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग ड्यूरिंग द लॉकडाउन ऑब्वियसली। सो सिंपल थिंग इज दैट इफ यू स्टार्ट डूइंग लिटिल बिट ऑफ एक्टिविटी, आई डोंट नो व्हाई पीपल आर थिंकिंग कि मैं बाहर नहीं जा रहा तो वर्कआउट नहीं हो सकता, मैं जिम नहीं जा रहा तो एक्सरसाइज नहीं हो सकता। व्हाई नॉट, घर में भी कर सकते हैं एक्सरसाइजेस, योगा कर सकते हैं। योगा मतलब इंडिया की देन है, दैट इज द थिंग व्हिच एवरीबॉडी इज फॉलोइंग, इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है वो, और इंडियंस हैज बीन इग्नोरिंग इट। हमें तो जिम लाइक हैज बिकम जिम एक बहुत मिरेकल वाला चीज हो गया, वहां जाने से ही सब कुछ होगा।
You start trying at home. I'm not like stressing about कि दिन भर करिए, आधा घंटा दीजिए अपने आप को, half an hour, sit and start doing it. It will really be helpful for you people. अगर हाफ एन आवर धीरे से, अगर आप स्लोली स्लोली, वन डे ज्यादा नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि इतना बड़ा लॉकडाउन, बहुत कम एक्सरसाइज की है, तो एकदम से धक्के से आप करेंगे तो मुश्किल होगा. तो स्लोली स्लोली स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे देखिए आपका टाइमिंग भी इंप्रूव होगा, आपका स्टेमिना भी इंप्रूव होगा. एंड प्लस अगर आपके डाइट में, एज आई टोल्ड यू, मोर ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इफ यू स्टार्ट एडिंग इट, योर immunity will increase, your stamina will also increase. And health drinks, that depends on what kind of activity and sports you're doing. Okay, so we have started getting a lot of questions. So, okay. So Miss Preeti, अभी आप क्वेश्चन का आंसर करना चाहेंगे या बाद में आप बताएं? No, it's okay. I can continue. You can give me some. ओके. सो जिस तरह से वेबिनार का फॉर्मेट है, आप लोगों के लिए ही वेबिनार आयोजित है, सो आपके ही क्वेश्चंस के साथ हम इस पूरे वेबिनार को साथ में लेके जा सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ये भी एक एनोनिमस अटेंडी ने पूछा है, बट इन्होंने बताया, ओके, शी इज राइटिंग, आई एम 22, आई हैव PCOD since 3 years, and I have been on hormonal pills. Since then, my weight has increased drastically. I don't eat much because I feel full just after a little and lack energy for doing exercise also. How do I manage my weight? Okay, very good questions. Because अभी PCOD को लेके इंडिया में like now it has become like, लोग enlightened, लोगों को पता चला है कि this disease has become very common in females. So this is polycystic ovarian disease. So ऐसे में क्या होता है, this disease, this is a totally hormonal based disease. तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि for every individual, for every woman, there will be a different signs and symptoms for this. The person who have asked, उसके हिसाब से उसका weight gain हुआ है, which is common for most of them. Some people even reduce, some people have some skin depigmentation. So there are different form of PCOD for every different person. So यहाँ पे क्या है, the person is increasing weight, उसका रीजन है हार्मोनल. ओके, तो यहाँ पे इसको क्या है, जो मैं उस टाइम BMR की बात कर रही थी और अभी की बात कर रही थी, देखो अभी आप अपने सामने वाले को कंपेयर मत कीजिए कि वो इतना खाता है, वो मोटा नहीं हो रहा, आई एम ईटिंग दिस मच, स्टिल आई एम गेटिंग फैट. सो द रीजन हियर इज, आपकी बॉडी में ऑलरेडी इतने चेंजेस हो गए हैं, इतना BMR आपका मे बी रिड्यूस हो गया है, हार्मोनल चेंजेस हो गए हैं, तो जो आपकी बॉडी में 1 चपाती इज वर्किंग, फॉर दैट पर्सन मे बी 4 चपाती इज वर्किंग. So you have to look upon that. You have to reduce not only on your diet. See, people, I have seen people जो कहते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं खाती, देखो इतना वेट कैसे गेन हो गया. Just see your timings of eating. फूड में खाली क्या आप खा रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या टाइम टेबल आप क्या मेंटेन कर रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, आवर बॉडी इज लाइक अ बायोलॉजिकल क्लॉक. आप जैसे मेंटेन करोगे ना, उससे वैसी हैबिट हो जाएगी. If you don't have, see, if I'm not right, I don't know about the history of that person कि कैसा उसका डाइट प्लान है, क्या टाइम टेबल है, बट अगर जैसे आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हो या लंच स्किप कर रहे हो, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग नहीं खाएंगे तो हमारा वेट रिड्यूस हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है. जितना हम लोग नहीं खाएंगे या भूखे रखेंगे अपने आप को, हमारे वेट गेन होने की भी टेंडेंसी भी इंक्रीज होती है. तो प्लीज लुक अपॉन दैट कि आप कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, क्या आपका स्लीपिंग टाइम, दैट ऑल्सो इफेक्ट ओबेसिटी. आई एम टेलिंग यू, बिकॉज अगर आप 6 आवर्स या 8 आवर्स की स्लीप पूरी नहीं कर रहे हैं, on that and see where you can make the changes. And obviously please do a little bit of exercise and sure it will reduce. And hormonal therapy तो आपका चल रहा है. Okay, thanks for answering, Ms. Preeti. Shweta Mishra का एक question है, then we move to more questions. She's asking, I want to ask that my healthy diet भी लेती हूँ, फिर भी मेरे पैर में पेन रहता है एंड चक्कर से फील होता है. पैर में क्या होता है? पैर में पेन होता है, दर्द होता है. अच्छा, पेन. अच्छा. Okay. So she had not mentioned, is she suffering from any type of disease or something? And चक्कर सा फील हो रहा है इनको. नहीं, चक्कर सा फील होता है, that's a sensation. Okay. No, see, there must be some reason behind it.
आपने अगर अपना आप हेल्थ चेकअप अच्छे से कराएँगे, सी मे बी आप एनीमिक हो सकते हैं, क्या पता आपका ब्लड कम हो बॉडी में, हीमोग्लोबिन कम हो गया हो, उसकी वजह से चक्कर आते हैं लोगों को, ब्लड प्रेशर कम हो जाने की वजह से चक्कर आते हैं लोगों को। और पैर में पेन होने का रीज़न इट कैन बी लिंक्ड टू सम डिज़ीज़ और लाइक सम चेंजेस इन योर हेल्थ राइट नाउ। अगर आप अच्छे से बता पाती हैं कि कब से अब आपको ये हो रहा है, क्या पता आपको इनएक्टिविटी की वजह से ड्यूरिंग लॉकडाउन ऐसे शुरू हुआ, क्योंकि जिनको आदत होती है हमेशा वर्कआउट करने की, हमेशा एक्टिव रहने की, उन लोग के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, प्रॉब्लम्स आ जाती है, पेन होता है बॉडी में एक्टिविटी रुकने से भी। तो ऐसा हो सकता है, या फिर आपने इस दौरान कुछ ऐसी एक्टिविटी की हो जिसकी वजह से पेन स्टार्ट हुआ हो। सो वी कैन नॉट जस्ट से बिकॉज आप डाइट की वजह से आपको ऐसा हो रहा, जब तक हमें मेडिकल हिस्ट्री नहीं मिले आपकी, या आपने डाइट हिस्ट्री, या आपने जो भी प्रीवियसली किया है, कब से हो रहा है, कैसे हो रहा है, वी कैन नॉट पॉइंट अपॉन कि किस वजह से हो रहा है। तो आई वुड सजेस्ट कि अपने हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराइए, अपने बीपी का टेस्ट कराइए, एक बार पता कीजिए, क्या पता वो ज्यादा लो तो नहीं है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और लेग पेन्स की वजह से अपने फिजिशियन को कंसल्ट कीजिए, पक्का पता चल जाएगा व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट। थैंक यू फॉर आंसरिंग मिस प्रीति। Yeah, श्वेता जी, yeah. आपको जवाब मिल गया होगा। और आपके लिए बता दूं और बाकी श्रोताओं के लिए भी कि हेल्थक्रम टेली कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करता है, और जिसमें आप हेल्थक्रम के कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिसमें आप अपनी हिस्ट्री भी देख चेक कर सकते हैं। सो आई वुड से ये एक नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ, इसके माध्यम से आप सब अपना टेली कंसल्टेशन भी करवा सकते हैं। और नंबर ये है, आप लिख सकते हैं 9755552909। ये एक हॉटलाइन नंबर है, आप कभी भी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक। 9755552909। ओके, सो श्वेता जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सो हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमें फेसबुक से शेयर किया गया है, बिकॉज हमारा ये पूरा वेबिनार फेसबुक में लाइव चल रहा है। ओके। मिस्टर सुरेश राठौड़ पूछते हैं, heard a lot about ketogenic. Okay, so we have discussed about ketogenic. मयूर जी पूछ रहे हैं, how someone can maintain their weight while dealing with mental issues like depression or anxiety. ओके, सो गुड गुड क्वेश्चन हियर इज लाइक मैंने आपको पहले ही भी बोला कि स्ट्रेस कैसे आपको ओबेसिटी की तरफ लेके जाता है। सो द थिंग इज, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप थोड़ा अपना वर्क प्रेशर और स्ट्रेस को कम नहीं करेंगे, तब तक मेंटेनेंस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा ही। सी, मैं एक डाइट फॉलो करने लग गई, बट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड माय बॉडी, अगर वो करेक्ट नहीं कर पाऊंगी तो डाइट भी शायद इफेक्ट ना करे। So that is important. See, अगर मेडिटेशन इज अ वेरी गुड थिंग अगर आप स्ट्रेस से गुजर रहे हैं और आपको डिप्रेशन है, तो अगर आप मेडिटेशन करेंगे, और जैसे कि हम जब पढ़ाई करते हैं एक टाइम टेबल बना लेते हैं कि आज मैथ्स पढ़ना है, आज इंग्लिश पढ़ना है, अगर वैसे ही अगर डाइट का हम लोग टाइम टेबल बना ले, जैसे मॉर्निंग में अगर मैं लाइक 6 o'clock उठता हूँ, तो मुझे विद इन 1 hour ब्रेकफास्ट करना है, जो आई डोंट थिंक एनीबडी फॉलोज। आजकल न्यू जनरेशन तो दे विल वेक अप वेरी लेट। So this thing is that as soon as you wake up, you have to have your breakfast. Like that, if you maintain the timetable every 2 hours, if I'm eating something that too it is healthy, then definitely you can maintain your weight. So that is very important. The timetable in food is very important. And breakfast, as you know everybody, this is a very common statement, breakfast का मतलब ही होता है break the fast. So आपने जो 8 hours का sleeping किया है, जिस वक्त आपने कुछ नहीं खाया, आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव था, सब डाइजेशन हो गया है, तो आपका स्टमक पूरा एम्प्टी रहता है, इसलिए विद इन 1 hour आफ्टर वेकिंग अप आप कुछ ना कुछ खा लीजिए। सो आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा होगा। सी, गुड फूड गुड मूड यही से है कि अगर आप कैसा खाएंगे, अपने आप को आपको बना के रखना है कि नो आई एम हेल्दी, आई कैन डील विद इट, देन यू कैन डेफिनेटली मेंटेन योर वेट एंड प्लस डू द मेडिटेशन, क्योंकि स्ट्रेस रिलीज नहीं होगा तो डाइट भी उतना इफेक्टिव नहीं होगा। Thank you, Ms. Preeti, for such a wonderful answer. और आई बिलीव मयूर जी को उनका जवाब मिल गया होगा, और ऐसे कई सारे जानकार श्रोता हैं जिनको इस तरह की दिक्कत होती है। सो वी आर फिनिश विद द क्वेश्चन एज ऑफ नाउ। मिस प्रीति, यू कैन कंटिन्यू विथ योर प्रेजेंटेशन एंड वी विल टेक क्वेश्चंस आफ्टर अ व्हाइल। Okay, sure.
So the thing is, I was like, I heard so many questions about stress. We have ketogenic diet, we have BMR and all, which I have said in between. So I will give a light upon that. So what is happening here is like what I was telling about BMR. See, अगर जब हम लोग वेट मैनेजमेंट का बात करते हैं, तो हम लोग इन जनरल सबको ले लेते हैं कि हाँ ठीक है, अभी इस लॉकडाउन में इस पॉपुलेशन को इतना हो रहा है, इंडियंस को वेट गेन हो रहा है. बट हम लोग कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि वेट गेन, बी इट इधर लॉकडाउन हो या ना हो, इंडिविजुअलाइज्ड भी बहुत होता है. So we cannot just suggest on a basis like HealthCrum is doing a very great job कि यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना दिखा सकते हैं, फिजिशियन से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी इनने दिया है बहुत अच्छा, हिस्ट्री भी पता कर सकते हैं. तो अगर हम लोग को ऐसा पता चल जाए कि अभी एवरी इंडिविजुअल, इफ यू टेक द हिस्ट्री, अगर हमें उसका BMR BMI पता चल जाए इंडिविजुअली, तो हमें डाइट प्लान करने के लिए बहुत आसान होगा. सेम अगर अभी जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया था PCOD पे, सो आई इन्फॉर्म यू, वहां पे ही मैंने आपको ये चीज अच्छे से बता दी होगी कि PCOD हर इंसान के लिए अलग अलग होता है. किसी इंसान को वेट गेन होगा, किसी को रिड्यूस होगा. वैसे ही अगर किसी की ओबेसिटी, किसी को गेन हो रहा है, अगर आपके फैमिली में ही अगर आप देख लीजिए, कोई एक इंसान 4-5 रोटियां खाता है, 6-7 रोटियां खाता है, उसको तो गेन ही नहीं हो रहा है, पर आप 2-2 रोटी में ही इतना वेट गेन कर जा रहे हैं. तो यहाँ पे BMR का डिफरेंस आ जाता है. इसलिए कोई भी कंसल्टेशन देने से पहले अगर थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ा सा मेडिकल हमें मिल जाता है, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प. तो हम लोग एक डाइट चार्ट प्लान करने में भी हमें आसानी होती है. और जैसे किसी ने अभी पूछा भी है कि वेट, आई एम टॉकिंग अबाउट वेट रिडक्शन, पीपल आर कमिंग अप विद कि वेट गेन कैसे करना है. तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लाइक वेट गेन एंड वेट लॉस इज कंप्लीटली वेरी डिफरेंट थिंग. तो वेट गेन करने के लिए सी, मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि अगर आपको वेट गेन करना है तो चलो घी बटर खाना शुरू कर दीजिए. दिस इज नॉट अ करेक्ट वे टू गेन वेट. क्योंकि वेट भी अगर गेन करना है तो वो भी हेल्दी होना चाहिए, कि आपको लॉन्ग रन में प्रॉब्लम ना हो. सी, वन मोर थिंग विच आई ऑलवेज टेल पीपल कि बाय लुकिंग अपॉन अ पर्सन यू कैन नॉट टेल हाउ मच फैट दैट पर्सन हैव. Okay, so the thing is, somebody is again asking about weight loss and diet plan. See, I am telling you again and again कि डाइट प्लान के लिए हमें डाइट हिस्ट्री चाहिए, आपकी मेडिकल हिस्ट्री चाहिए, आपका 6 मंथ्स का पूरा हिस्ट्री चाहिए, क्या कर रहे हैं, कैसा BMI है, कैसा BMR है, अकॉर्डिंगली हम लोग पर पर्सन देते हैं. सी, आई डोंट वांट इट टू बी जनरलाइज्ड, क्योंकि सब पर्सन का अलग अलग होता है. अभी आप देख लीजिए, किसी को ग्लूटेन एलर्जी होता है, हम किसी को सजेस्ट नहीं कर सकते ना कि ग्लूटेन फूड खाइए. किसी को और कोई प्रॉब्लम्स होती है, किसी को गैलेक्टोज का प्रॉब्लम है, किसी को लैक्टोज का प्रॉब्लम है. तो ऐसे हम लोग जनरलाइज नहीं दे सकते हैं. और प्लस सबके बॉडी का फैट भी लाइक डिफरेंट प्रोपोर्शन में होता है. सो समबडी हु लुक्स लीन और हम सोचेंगे उसके बॉडी में सब हेल्दी है, फैट भी हेल्दी, इट्स नॉट नेसेसरी. इट कैन बी देयर कि उनका भी कोलेस्ट्रॉल हायर हो. इफ यू हैव कम अक्रॉस एवर इन योर लाइफ कि कोई लीन पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, देन यू विल गेट टू नो ऑल दिस थिंग्स. तो हेल्दी फैट होना, बी यू आर लीन और बी यू आर फैट, इज वेरी नेसेसरी. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फैट, आपको पता हो, मोस्ट ऑफ यू मे बी नोइंग कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अच्छा होता है, घी बटर से अच्छा है. आपका जो ऑयल्स हैं हमारे, सनफ्लावर्स ऑयल है, ऑलिव ऑयल्स है. ऑलिव ऑयल तो बीच में बहुत ट्रेंड में आया था कि ऑलिव ऑयल इज गुड फॉर सैलेड में डालो, ये है वो है. सेम सीड ऑयल है. तो वो सब चीजें एक हेल्दी ऑयल की तरफ आपको लेके चलाते हैं. फिर अगर हम नॉनवेज की बात करें, मेनी पीपल हैव अ कंफ्यूजन इन दैट कि फैट तो रिड्यूस करना है पर मैडम नॉनवेज तो छोड़ नहीं सकते, नॉनवेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे चलेगा. तो जब हम ऐसी बात करते हैं नॉनवेज चाहिए और फैट भी रिड्यूस करना है, तो बेटर आप गो फॉर fish. Okay, so fish have healthy fat. So if you go for fish, it is good. So now chicken people will be upset. So चिकन में भी अगर आप चाहें तो लाइक वाइट स्किन वो ले सकते हैं, तो वो थोड़ा हेल्दी है, बेटर है, कम फैट रहता है. देन अबाउट अगर आप एग की बात कर रहे हैं, तो योक में बेसिकली कोलेस्ट्रॉल होता है, तो उसको हटा के आप ले सकते हैं. रेड मीट आई विल से अवॉइड इट because it contains a lot of cholesterol. Until and unless it is like very necessary, some rituals and all, then it is fine. But once in a while, don't go for it regularly, because in long run they're definitely going to affect you.
So this is the thing, how you have to follow it. You have to know yourself, what is your body type, what is your BMI. You have to be, you have to be aware of your body type, which is very important. Just looking in the mirror and thinking, because people have wrong perception about their themselves. I've seen people who look lean and they still think they are obese. I've seen people obese but they think nahi yaar ho jayega manage, itna to chalta hi hai. So this kind of false image perception is also problematic. So ऐसे में there is one question on egg also. So ऐसे में अपना perception के लिए भी clear रहना, वो कैसे हो सकता है? अगर आप किसी से अपना BMI, BMR, अपना body fat percentage, अपना muscle percentage, ये सब अगर आप पता करें तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ आपकी हेल्थ जा रही है. तो उस हिसाब से आप अपने आप को कंसल्टेंट के पास जाके कंसल्ट कर सकते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए. So this is the thing. So individually I will suggest कि आप लोग को करना चाहिए. As generalized diet plan I cannot suggest. I'll just give you some tips to reduce weight. Okay, many people are behind that कि नहीं weight तो reduce करना ही है. So there is something called as trick your mind. Okay, so there is a thing like if you change your crockeries and all, like your utensils and all, cutleries and all, you can at least change your proportion or portion of eating. तो क्या है यहाँ पे कि अगर आप देखेंगे, अगर आप एक बड़ी थाली में खाना खाते हैं तो आप ज्यादा खाना खाएंगे, क्योंकि आपका अमाउंट ऐसा बड़ी थाली में तो ज्यादा खाना भी कम ही लगता है, तो हम लोग ज्यादा ज्यादा डालते जाते हैं. तो अगर वही चीज अगर हम लोग चेंज कर दें, अगर हम छोटी थाली लेना शुरू कर दें, तो वील स्टार्ट ईटिंग लेस अमाउंट. इस छोटी छोटी चीजें अपने दिमाग को ट्रिक करने के लिए. एंड वी चलो ये तो थोड़ा सा वेस्टर्नाइज हो गया कि स्पून. The thing is, when we tend to eat with hand, no, we'll eat more. Whereas when we start eating with a spoon, small size spoon, obviously. तो हम chewing is, अगर आप च्यू करते रहेंगे तो हाफ ऑफ द लाइक जो अगर कार्बोहाइड्रेट है डाइजेशन आपके माउथ से ही ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है. तो दैट इज द बेस्ट पार्ट. सेकेंडली, इफ यू च्यू करते हैं तो हमें हमारे ब्रेन को भी सिग्नल मिलता है कि वी आर ईटिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. अरे ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा खा लिया हम लोगों ने, कब से हम लोग च्यू करे जा रहे हैं. तो दीज आर द थिंग्स टू ट्रिक योर माइंड. जब आपका दिमाग आपको बोलता है कि और खाओ, जस्ट अगर वो आपको ट्रिक कर रहा है, इवन इफ यू आर फूल, स्टार्ट ट्रिकिंग हिम बैक. तुम भी उसे बताओ कि लाइक हाँ हम लोग भी खा रहे हैं, तब से खा ही रहे हैं, एक ही चीज खा रहे हैं. सो स्लो ईटिंग ऑल्सो हेल्प्स यू इन डिक्रीजिंग योर वेट. ये कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स अगर आप लोग यूज करेंगे तो डेफिनेटली इट विल वर्क आउट टू रिड्यूस योर वेट. So this is the thing. Somebody asked me about ketogenic diet. So I told you about ketogenic diet कि वो long run के लिए अच्छा नहीं है. तो उसका principle क्या है basically? तो the principle behind is that कि हम लोग fat को उसमें मानते हैं कि फैट ही खाना है. अब ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हो गई, फैट रिड्यूस करने के लिए फैट ही खाना. तो यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में पीपल स्टार्ट अवॉइडिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, दे विल गो फॉर फैट डाइट. तो इसमें इसके पीछे का लॉजिक ये लगाया है कि हम लोग वैसे यूजुअली जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, तो हमारा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बर्न होता है या फिर उसी का ग्लूकोज जो भी हमारे ब्रेन में जाता है और वहां से मतलब जो भी हमारे बॉडी का मैकेनिज्म होता है. बट यहाँ पे दूसरा क्या है, यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि फैट देके हमारा जो डिपॉजिट फैट है उसको बर्न करने की कोशिश की जाए. बिकॉज अगर हम देखें हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों में से सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक इनएक्टिव जो है वो है हमारा फैट. दैट इज वेरी लीस्ट एक्टिव. सो उसको स्टार्ट करें, उसको मेटाबॉलिकली एक्टिव बनाना शुरू करें, इसलिए ये डाइट आया था. बट अगेन लाइक अदर्स डाइट, इसका भी कुछ रिजल्ट्स गुड आए, कुछ अच्छे भी थे. बट अगेन दैट्स द प्रॉब्लम विद दिस कि नहीं, मतलब फॉर अ लॉन्ग रन इट वाज नॉट हेल्पफुल. So that's why we say whatever you eat, eat in a balanced ratio. So somebody asked me about how to reduce the belly fat. So most of the people tend to gain weight कहाँ पे, अपर हमारे abdominal area में. तो उसके पीछे भी मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या है कि whenever
Yeah, so somebody asked me that ketogenic diet is good for epileptic. Yeah, I think that person is from nutrition background. That person must be knowing. Yes, very good. The thing is, ketogenic is yes really helpful for epileptic patients. तो जिनको seizures आते हैं, उन लोगों को suggest किया जाता है वो diet. So that's why that is a disease specific diet. Why we people are forcing normal individual to eat that diet when we can have everything? One more thing which I am not getting an idea is the way we are westernizing. Okay, so there is the one thing I always tell to even to my student is there is for every geographical region, like India being an agriculture country, we have a different height, weight, BMI, सब कुछ हमारा एकदम अलग होता है वेस्टर्न पीपल से. तो हम लोग जो हमेशा एक अपने आप को फोर्स करते रहते हैं कि नहीं बाहर का खाना है, वेस्टर्नाइज होना है, लाइक लैंग्वेज तो है ही है वेस्टर्नाइज, ऑब्वियसली हम लोग अब इसकी तरफ भी जा रहे हैं, खाने के पीछे भी वेस्टर्नाइज होने के लिए. सो वी कैन नॉट कंपेयर और बिल्ड दैट टाइप ऑफ लाइक हाइट, वेट और फिजिक. और फिजिक इज कंप्लीटली डिफरेंट. So forcing ourselves towards it, we are harming ourselves. Like we are harming our people by eating all those things. हम लोग नहीं उतना हम लोग एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारे लिए एवरीथिंग इज फ्रेश प्रोड्यूस. हमारे यहाँ पे फॉर ग्रेन्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हम लोग को फ्रेश मिल जाता है. देन व्हाई वी पीपल आर इवन गोइंग फॉर डिहाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल्स? because those people are following, we are also following. So that is what we are wrong, very wrong about. कि वो लोग जो भी करते हैं वो सही है. जब आपको सब कुछ फ्रेश मिलता है, आपको सारे न्यूट्रिएंट्स भी फ्रेश और सही अमाउंट में मिल जाते हैं. whereas when it is processed और डिहाइड्रोजनेटेड, काफी अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं. और अभी तो आई थिंक बिकॉज ऑफ ऑल दिस पेंडेमिक एंड ऑल, everybody has got to know the importance of vegetables, fruits, कितना important है हमारे इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए. everybody is talking about citrus fruit, everybody is talking about how vegetables are important. यही चीज कहीं हमने गुम कर दी थी because of being westernized. ये सब कुछ हमारे प्लेट में पहले से ही था, शुरुआत से ही था कि हम लोग जो भी खाएं because of our geographical area, because of our country, हम लोग खा सकते थे. but we are moving towards that. now it is affecting us back. मैंने जैसे योगा के लिए भी कहा था, सब कुछ हमारी जनरेशन योगा भी कर सकते हैं, उसके कितना हेल्पफुल है. वैसे ही डाइट भी अगर हम लोग अपने हिसाब से फॉलो करें, आई एम टेलिंग यू इट्स रियली बेनिफिशियल टू ईटिंग ऑल दोज थिंग्स इन आवर डाइट. So about that, somebody asked me about belly fat. Oh, I forgot to tell about that. So reducing the belly fat, actually it is not that difficult. People think कि एक बार तो मतलब पेट आ गया, अब तो रिड्यूस होगा नहीं. It's not like that. It is not that difficult. अगर आप देखें तो लोअर abdomen का वेट रिड्यूस, अगर लोअर एरिया का वेट रिड्यूस करना is much difficult than reducing your tummy portion or your stomach area. It is just that little bit of exercise. कुछ एक्सरसाइज अगर आप देखेंगे, कुछ एरोबिक्स अगर आप देखेंगे जो आपके स्टमक एरिया के लिए कॉन्सेंट्रेट करके वहां पे कैसे रिड्यूस करना है फैट, उसको लेके होंगे, तो आप वो करें और अपने डाइट में कुछ चेंजेस करें. देखिए अगर आप ऑलरेडी वेट गेन कर चुके हैं और अगर आप डाइट फॉलो करना शुरू कर दें विदाउट एक्सरसाइज, थिंकिंग दैट कि आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा, तो शायद आप गलत हैं. क्योंकि आपको थोड़ा सा तो एक्सरसाइज करना ही होगा वेट रिड्यूस करने के लिए. These two things no work hand in hand. We cannot only be dependent on one thing कि हाँ बस वेट रिड्यूस हो जाएगा, जो भी हम लोग खा रहे हैं हेल्थ के लिए बस ठीक है. Because physical activity is all very important. So somebody is asking me about how to this HCL healthcare. Okay, visceral fat. Okay. So somebody is asking me about again that tummy fat has become a big issue. कहीं भी फैट बर्दाश्त हो जाएगा, बस स्टमक में फैट नहीं होना चाहिए. Yeah, good. This why it's not only कि लुक में खराब लगता है, it is हेल्थ के लिए भी बहुत डेंजरस है. अगर आपके abdominal एरिया में फैट है, it can directly affect your heart. आपको आर्थरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं जब आपके टमी एरिया में फैट ज्यादा होता है. So this is the thing. That's why it is very important to reduce the fat in that area. So start decreasing your portion size. Obviously, I'm telling you, it's not generalized. Please don't take the like prescription on generalized basis.
आप पता कीजिए आपका क्या BMI है, BMR है. I don't want anyone to have to be in false perception of him or her कि नहीं हमें gain हुआ है. I want everybody to have a good idea about their health. अब किसी फिजिशियन से दिखाइए, किसी से पता कीजिए, जाके देखिए आपका BMI BMR क्या है और उस हिसाब से आप start reducing it, start decreasing the weight by eating healthy diet. I told you all these things. I told you to increase lot of fluid in your diet. अगर ज़्यादा से ज़्यादा liquid लेंगे तो weight reduce करने में बहुत helpful होता है. weight reduce करने में liquid, क्योंकि like your problems like constipations and all will be. So for them, if I a little bit tip for them also, not everybody wants to have decrease the weight. Somebody so you can go for told you that healthy diet. आप ना अपनी प्रोटीन पे ध्यान दीजिए. मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि जब भी अगर वेट गेन करना है तो हेल्दी वेट गेन कीजिए. आप अपने मसल से वेट गेन कीजिए, अपने फैट से नहीं, क्योंकि पता चला वेट गेन किया और फिर ओबेसिटी के लिए दोबारा रिड्यूस करने के लिए आ गए. सो बेटर है वेट गेन कीजिए, प्रोटीन खाइए, मसल को बढ़ाइए, जो हेल्दी भी रहेगा, आपके आगे में काम आएगा. तो फोकस ऑन प्रोटीन ऑफ योर डाइट. इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटीन पाउडर्स एंड गो स्टार्ट ईटिंग दैट. नो, व्हाट प्रोटीन इज इन योर किचन, व्हाट यू गेट इन योर डाइट, स्टार्ट फ्रॉम देयर. सो इट विल हेल्प यू इन increasing a good weight. So Thank you, Miss Preeti, for such a wonderful information. We have few questions, couple of questions. फिर आज का हम सेमिनार यही समाप्त करेंगे. So I'm taking a question. It is from Saurabh. He is asking, ma'am, how to control excess sleep with diet or eating timing? Please answer. okay, excess sleep. अच्छा, so अगर आप इन the Saurabh, if you can tell me कब से आपने शुरू किया है, तो आई एम प्रीटी श्योर इट इज द इफेक्ट ऑफ योर लॉकडाउन. कि क्योंकि अगर आप काम करते रहेंगे तो स्लीप तो कहीं और ही चली जाएगी. अभी थोड़ी देर पहले वी पीपल बिफोर ऑल दिस पेंडेमिक वी आर कंप्लेनिंग अबाउट सोने को नहीं मिल रहा है, नींद नहीं कंप्लीट हो रही है, इसकी वजह से हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है. नाउ पीपल आर कमिंग अप विद एक्सेस स्लीप. क्या करना है? अच्छा, ज्यादा सोने के लिए. अच्छा, जब पहले हम काम करते थे, ऑफिस का सारा काम करते थे, तो कॉफी पीते थे जगने के लिए. अभी उल्टा कीजिए. सो अगर इतना ही सोना है, आप अगर बार बार नींद आ रही है, try having a coffee. Caffeine will always wake you up. So that is the thing you can do with that. And obviously one more thing, if you eat excess amount you will feel tired and you will tend to sleep. तो अपना पोर्शन साइज डिक्रीज कीजिए, थोड़ा कम खाइए. मैंने कहा ना, एवरी 2 आवर्स के इंटरवल में थोड़ा थोड़ा करके खाइए, जैसे छोटे बच्चे करते हैं. दे विल नॉट ईट एवरीथिंग एट वंस. वो बार बार हर 2-2 घंटे पे खाना मांगेंगे. अगर वो चीज अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ज्यादा टायर्डनेस भी नहीं होगी और एक्सेस स्लीप भी नहीं होगा. तो दिस थिंग यू कैन फॉलो. Okay, so everything should be balanced. Yes. Okay, so last question है, how to start yoga for beginners? Which exercise can we start with? Mr. सुजान ने ये पूछा है. अच्छा, सी आई एम नॉट अ योगा स्पेशलिस्ट ना, फिर या फिर योगा एक्सरसाइज को लेके. आई एम जस्ट गिविंग, आई एम मोर ऑफ लाइक इन डाइट, न्यूट्रिशन एंड ऑल. सो आई एम नॉट. सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक चीज बताना चाहूंगा ऑडियंस को. आज से 2 या 3 दिन बाद ही एक और सेशन है, वो योगा स्पेशलिस्ट द्वारा हमने ऑर्गेनाइज पहले से शेड्यूल किया हुआ है. सो जिनको भी एक्सरसाइज योगा से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, सो देयर विल बी वन स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट इन योगा. शी विल बी ज्वाइनिंग विथ अस एंड यू कैन आस्क योर योगा रिलेटेड क्वेश्चंस. या सो आई थिंक द क्वेरी इज सॉल्व्ड. आप देख सकते हैं आगे जाके जो नया एक और आने वाला है योगा के ऊपर. सो योर आंसर विल बी देयर. Okay, thank you so much, Miss Preeti. It was a wonderful session. और
बहुत सारे क्वेश्चंस आए, जैसा कि हमारे सेशन पे होता ही है, और ये एक जनरल सेशन रहता है, किसी सर्टिफिकेशन के लिए हम ये चीज नहीं चला हाँ, रहे हैं। ये यस, यस। भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड हेल्थ क्रम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा आयोजित वेबिनार है, जो इस लॉकडाउन में लोगों के लिए ये वेबिनार कर रही है। और मिस प्रीति जैसे एक्सपर्ट ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मिस प्रीति। आपके थैंक यू सो बिजी मच। शेड्यूल से आपने अपना 1 घंटा निकाला, एंड वी आर वेरी थैंकफुल फॉर यू। Thank you so much for giving me this opportunity to speak here. Healthcrum is giving a good opportunity to everybody कि इस लॉकडाउन के दौरान आप अपनी अवेयरनेस, अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं. So stay in touch with Healthcrum. You will get to know more about yourself, your diet, your health, and this will be very helpful. Thank you. थैंक यू सो मच मैम। Thank you.